नवौं चरणको द्वारे सरकार शिविरको समापन गरिएको छ। जनसङ्ख्याको अनुपातमा सहभागिताको हिसाबले कालेबुङ जिल्ला राज्यमै प्रथम जिल्ला बन्न सफल भएको छ। राज्यकी माननीय मुख्यमन्त्रीको अनुप्रेरणामा विगत 2020 देखि आरम्भ भएको द्वारे सरकारको नवौं संस्करण शिविर शनिबार विभिन्न स्थानको शिविर सँगै समापन भएको छ। केटिभी समाचारका सरप्राइज वारोबर द अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चौक कालिम्पोङ OCS कालिम्पोङ One Step Solution for Study Abroad Motor Stand Kalimpong Himalayan Shopping 10th Mile Musk House Kalimpong North Bengal को आफ्नो इलेक्ट्रोनिक रिटेल चेन DPMI Siliguri India's leading paramedical institute Capital University Jorthang South Sikkim admission open for the session 2024-25 राज्य सरकार अन्तर्गत रहेका 18वटा विभिन्न विभागका 37वटा योजनाहरूको सुविधाहरूसित 9 दिनसम्म सम्पन्न भएको द्वारे सरकार शिविरमा मोठ जनसङ्ख्या र शिविरमा मानिसहरूको पञ्जीकरण प्रतिशतको हिसाबले कालेबुङ जिल्ला राज्यमै प्रथम स्थानमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नवौं संस्करणको द्वारे सरकार शिविर अन्तर्गत 9 दिनमा जिल्लामा कन्भेन्सनल अनि मोबाइल शिविर गरी 508वटा शिविरहरूको आयोजना गरिएको थियो। यस अन्तर्गत खण्ड 1 कालेबुङको 18वटा ग्राम पञ्चायतहरूमा 185वटा, गोरुबथान खण्डमा 128वटा, लाभा खण्डमा 82वटा, पेदोङ खण्डमा 73वटा अनि कालेबुङ नगरपालिकामा 40वटा शिविरहरू सम्पन्न भएको थियो। मानिसहरूको घर दैलोमा पुगेरै राज्यका विभिन्न विभाग अन्तर्गत रहेका कल्याणकारी योजनाहरूको लाभ प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्पन्न हुँदै आएको यसपल्टको शिविर मार्फत आम मानिसहरूले अत्याधिक लाभ लिन सकेका छन्। जिल्लाका हजारौं जनसाधारणलाई सेवा प्रदान गरेको तथा कतिपय योजनाहरूको आवेदन फर्म हजारौंको संख्यामा आफूहरूलाई प्राप्त भएको जिल्लापाल बालसुब्रमण्यम टीले बताएका छन्। यी सबै प्रयासको फलस्वरूप पनि शिविर सफल हुन सकेको उनले थप बताएका छन्। जिल्लापाल बालसुब्रमण्यम टीले आज अन्तिम दिनको शिविरहरूको पनि भ्रमण गरेका थिए। शिविरको अन्तिम दिन यता खण्ड 1 कालेबुङको डाक्टर ग्राम्स होम्स अप्पर इच्छे अनि सिन्देबुङ ग्राम पञ्चायतमा शिविरहरूको आयोजना भएको खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लामले जानकारी दिएका छन्। अन्तिम दिनको शिविरमा पनि मानिसहरूको उपस्थिति भिडभाडपूर्ण रहेको उनले बताएका छन्। यसरी नै कालेबुङ महकुमा शासक अनि चारैवटा खण्ड विकास सबैको सहयोगको उनले मुग्धकण्ठले प्रशंसा पनि गरेका छन्। उनीहरूले शिविरमा सहभागी भएर शिविरको उद्देश्यलाई सफल तुल्याउने सम्पूर्ण जनसाधारणमा पनि आभार प्रकट गरेका छन्। With the inspiration of Honorable Chief Minister Madam, the Government of West Bengal has launched an innovative administrative initiative called Dware Sarkar in December 2020. And through this initiative, the state government has taken selected pro-poor, welfare-oriented schemes to an ensured delivery of services at the citizens' doorsteps, including to those living in the remotest parts of the state, ensuring no one is left behind. The 9th edition Dware Sarkar, scheduled from January 24th to February 1st, 2025, aims to deliver 37 government services at the doorstep of the citizens. Under the kind guidance of the respected district magistrate, Kalimpong, this block has set up 92 mobile camps to reach hardest to reach areas and populations, including tribal habitation and geographically challenging areas. The mobile team covered the uncovered habitation through vehicular support and also through house-to-house visit. All resources of this block have been deployed to proactively receive the application form from eligible persons and also to assist them to fill the forms correctly. The mobile Dware Sarkar team has not only collected house-to-house applications but also conducted health checkup camp at old age homes, distributed relief materials, cash GR, Sumo Byathi, etc. Dware Sarkar team visited Yandera home today. So they checked our health and all the documents. They're very happy they visited us and asked us all the questions, necessary questions. And we
we will present. Through this unique administrative campaign, all of us together have become successful to reach the unreached, to cover the uncovered, and thereby to improve the standard of living of the people residing in inaccessible hilly areas. These mobile camps have removed accessibility barriers, making it easier for citizens to avail government services without long distance travel. Additionally, building bondage between the administration and the people by ensuring last mile delivery of essential services, the Dware Sarkar initiative promotes inclusive governance, equitable social development, and brings mobility amongst the inaccessible people of hilly areas. आज को एक कार्यक्रम में पर्टिकुलरली द्वारा सरकार कैंप में जितना लोग आज उपस्थित हैं, धन्यवाद और स्वागत। ये तो हम लोग का 9th राउंड ऑफ द्वारा सरकार है। इसके आगे तो 8 बार हो चुका है। इसमें हम लोग मैक्सिमम ओवरऑल हम लोग का जो जितना सेंसस पॉपुलेशन है उतना नंबर्स हम लोग कवर कर चुका है। जो 2.5 लाख के ऊपर भी हम लोग का कवर हो चुका है। 3 लाख के आसपास हम लोग का फुटफॉल हो चुका है। बट फिर भी हम लोग ऐसे हम लोग का कवर था और पब्लिक के पास डिमांड भी था। कुछ जगह ऐसे अनकवर्ड एरिया है जिधर हम लोग का कैंप नहीं लगा पाया। रेगुलरली जो कैंप हो रहा है उधर ही हो रहा था। बहुत दूर दूर में जो छोटे मोटे ट्राइबल सेटलमेंट्स है, बस्तीज है, उधर हम लोग कुछ जगह में तो अभी अनकवर्ड एरिया था। इस बार हम लोग पूरी उसी एरिया के ऊपर ध्यान रख रहे थे। हम लोग बहुत सारा हम लोग ये तो स्टैटिक कैंप है, हम लोग का मेन कैंप होता है। इसके अलावा मोबाइल कैंप बहुत सारा मोबाइल ऑलमोस्ट 200 के आसपास मोबाइल कैंप्स किए हैं। मोबाइल कैंप के अलावा भी हम लोग आउटरीच कैंप करके 3-4 लोग जाते हैं। हम लोग का लोग 3-4 ऑफिसर जाते हैं। स्पेसिफिक 10-15 घर है, उधर बैठ के तो उधर जितना एप्लीकेशन आपका लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम्स है उसके जानकारी के लिए जा रहे थे। इस बार बहुत अच्छा से काम हुआ। हम लोग अभी फुटफॉल हम लोग का रीच कितना हुआ हम लोग असेस कर रहे थे। लास्ट टाइम से भी अच्छा हो रहा है। पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज हम लोग कवर कर पाया। उसमें भी हो सकता है कुछ और भी मे बी मिस्ड आउट जगह हो सकता है। उसके लिए जानकारी के लिए आप लोग पता कर लीजिए। हम लोग का जीपी ऑफिस में कवर दे दीजिए। हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। उसके आगे भी हम लोग बीच में हम लोग का टीम इसके अलावा हम लोग एक्सटेंड करके भेज सकते हैं। सो अल्टीमेटली हम लोग का जितना गवर्नमेंट सर्विस है इसके हम लोग 37 नंबर ऑफ सर्विसेज इसमें दे रहे हैं। इसके बाहर भी सर्विसेज है। सो उसका भी कुछ आप लोग देना चाह रहे हैं, कुछ सजेशन है, ग्रीवेंस है, जो भी आप लोगों का कुछ इलाका के लिए कुछ प्रॉब्लम है वो जानना चाह रहे हैं, उसी का भी आप लोग जो जितना द्वारे सरकार कैंप में दे सकते हैं। आज भी चल रहा है। जो भी आप लोग का सजेशन फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। इस बार तो 9th आज का लास्ट डेट है। 9th द्वारे सरकार कैंप का लास्ट डे आज है। इसके बाद क्या होगा टिल हम लोग का फरवरी मास के अंतर में हम लोग पूरा जितना सर्विस डिलीवरी देना है, सपोज जितना एप्लीकेशन आपके साथ हम लोग लिया है वो एप्लीकेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली। 1-2 डिले होगा, जैसे पेंशन का तो हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस करके आपका नाम डाल देंगे, तब वो कोटा होगा आपका तो मिलेगा। तो पेंशन थोड़ा आगे पीछे देरी होगा, इसलिए ओल्ड एज पेंशन का आप लोगों का तो मैं आगे 2-3 कैंप में भी दिया है, अभी तक नहीं हो रहा है। वो ऐसे कुछ नहीं है, वो तो जनरली एक कोटा होता है। गवर्नमेंट से एक कोटा रिलीज करते रहते हैं। आपका जितना एप्लीकेशन दे चुका है वो एग्जैक्टली सब कुछ हम लोग एंट्री करके रखा है। आपका तब टर्न आएगा, आपका आने शुरू कर देगा। तो इसलिए वो एक पेंशन का एक देरी, थोड़ा सा देरी होगा, बट वो ठीक ठाक हो जाएगा। सो यही मेरा हम लोग का बोलने का सब कुछ। और जितना भी सर्विसेज है, सो आगे हम लोग का 30 के आसपास सर्विस था, उधर से हम लोग लेके आगे अभी 37 सर्विसेज दे रहे हैं। तो पब्लिक फीडबैक से पब्लिक बोल रहा है हम लोग को ये सर्विस भी दे दीजिए द्वारे सरकार कैंप में। सो हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। सो इसी तरह का गवर्नेंस, गवर्नमेंट का सर्विस गवर्नेंस हम लोग कितना पब्लिक के नजदीक पहुंच पा रहे हैं, वही हम लोग का टीम है। और हम लोग का जितना टीम का जो ये एम है कि रेगुलरली हम लोग इससे टच में रहेंगे। द्वारे सरकार कैंप के बाहर भी हम लोग का टीम्स आएंगे। हम लोग भी सीनियर ऑफिसर्स हम लोग विजिट में रेगुलरली विजिट में आएंगे। आपका इलाके में आपके साथ मिलेंगे। सिर्फ द्वारे सरकार टाइम में नहीं है, हम लोग सब समय आपका गवर्नमेंट का सर्विस, गवर्नमेंट का द्वारे सरकार आपका द्वार में पहुंचने के लिए हम लोग डेफिनेटली रेगुलरली आते रहेंगे। तो जो भी आपका फीडबैक है, नीड है, हम लोग जीपी ऑफिस, अभी जीपी ऑफिस फंक्शनल है, प्रधान उप प्रधान सब लोग हैं। सो इनके साथ टच में रहिए। जो डिटेल है हम लोग के पास दे दीजिए। हम लोग हमेशा आपको सर्विस करने के लिए है। तो दिस थैंक्स टू बीडीओ ऑफिस एंड दिस एंटायर स्टाफ फॉर सक्सेसफुली अरेंजिंग। आई थिंक कालिम्पोंग वन का बहुत अच्छा ही काम हुआ, बाकी ब्लॉक्स में भी अच्छा हुआ।
कलिम्पोंग 1 का हम लोग फीडबैक भी देख रहे थे, बहुत सारा रिमोट एरियाज हम लोग ने रीच कर पाए एंड फुटफॉल भी बहुत अच्छा है। सो इसी के कारण हम लोग एक बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग रीच कर पाए। सो थैंक यू कलिम्पोंग ब्लॉग।